Hello, dear friends, and welcome to the International Fab Talks. Thank you for being a part of our journey. As usual, we are back again with yet another wonderful celebrity who's here to grace our platform and share his expertise and knowledge as to how he's overcome all the challenges and he has achieved professional success. Till date, he has been educating himself, acquiring different degrees and skills, and working for the betterment of one and all. Let's welcome our celebrity and guest. He is Dr. Shyam Sundar, joining us all the way from Prayagraj, Uttar Pradesh, that is located in India. Hello, sir, and welcome to the session. Thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you so much. धन्यवाद सर, आपने स्वीकार किया हमारा इनविटेशन टू द इंटरनेशनल फैब टॉक्स. बहुत बहुत धन्यवाद. डियर सर, अभी आपका प्रोफाइल हम शेयर करेंगे कि आप कौन है, उसके बाद में हम इंटरव्यू सेशन स्टार्ट करेंगे सर. श्योर मैम. थैंक यू. डियर फ्रेंड्स, हमारा कर्तव्य है कि सर के प्रोफाइल शेयर करना है सभी को, एंड आपको मालूम होना चाहिए कि भाई यहाँ पर कौन है और आप उनसे क्या सीख सकते हैं. जब इंटरव्यू होगी तब यू विल अंडरस्टैंड एज टू हु सर इज, क्या है, किस फील्ड में सर माहिर है. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम दे देंगे और उसके बाद में सर खुद एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये सब कैसे हासिल करें. So Dr. Shyam Singh is a guest faculty from Varda Samaj Karya Sansthan, a regional center, Prayagraj, Mahatma Gandhi Antarashtriya Hindi Vishwavidyalaya, that's in Junsi, Prayagraj. Apart from that, my dear friends, I'd like to add that how sir came to this beautiful field and how he's been focusing all his life in the academic sector. Dr. Shyam Singh is a guest faculty. As I earlier mentioned, he completed his graduation from Lucknow University in 2012 and post-graduation with regard to MSW, that is Master in Social Works from Banaras University, Banaras Hindu University. If I could put that right, sir has completed his MSW from Banaras Hindu University, Varanasi in the year 2014. Sir also completed his MPhil from the Department of Social Work, University of Lucknow in 2015. He's also completed his PhD from Varda Samaj Karya Sansthan, that is MGAHV Varda in 2020. His doctoral research was on what? The problems of elderly in BPL families and facilities for institutional care, a study conducted in Lucknow City, UP. He specializes in community development and gerontological teaching. If I could get that right, I'll put it right in the right way. He specializes in community development and gerontological social work. He is well known for teaching community organization and has skills in the field of practisium. If I get that word right, if I'm getting it right. And sir is also a person who's been focusing on research papers. He has published more than 12 research papers in well-known journals like the UGC Care Listed, Scopus Indexed, and peer-reviewed, and also edited one book. He has participated and has presented many papers in more than 30 national and international conferences, seminars, and workshops. Currently, sir is also working for the welfare of the elderly people. In the field of the elderly welfare, he has done a lot of appreciative work for the betterment of the elders in the society. And my dear friends, for this work, he has been honored by many NGOs and welfare institutions, as to sir has been doing all this right from the start, wanting to serve humanity with focus to the elderly citizens in our country. Join us, friends, to get to know more about him, as to how he's doing all of it. And if you would like to be like Dr. Shyam Singh, you too could be. Join us in this interview. Sir, dhanyawad, sir. That is really nice to know about your profile. Thank you, ma'am. Thank you, sir. अभी हमने आपका प्रोफाइल शेयर किया था. अभी लोग जानना चाहेंगे आप कौन हैं खुद से. ये तो मैंने शेयर किया, तो आप डॉक्टर श्याम सुंदर कौन है? हु इज द रियल पर्सन? जी मैम. Actually, ma'am, I'm Dr. Shyam Singh. I'm basically from Lakhimpur Kheri district of Uttar Pradesh, India. And वहाँ पे मैं एक ऐसे जिले से बिलोंग करता हूँ. ये यूपी का एक ऐसा जिला है जो पॉपुलेशन डेंसिटी की पर्सपेक्टिव से सबसे बड़ा जिला है. और कह सकते हैं कि डेवलपमेंट वहाँ पे बहुत कम हुआ है, उतना नहीं हुआ है. बट वहाँ से निकल के एक मेरा शुरू से ड्रीम था कि मुझे एकेडमिक्स में आना है. तो फिर मैं वहाँ से फिर मैं लखनऊ आया. फिर
लखनऊ से मैं बीएचयू गया, फिर बीएचयू से फिर लखनऊ, फिर मैं महाराष्ट्र वर्धा गया। वहां ना तो मेरी जो जर्नी रही वो काफी मतलब एक नहीं कि एक ग्रास रूट लेवल से एक टॉप टू बॉटम, सॉरी बॉटम टू टॉप टॉप के जैसी रही। मतलब एक छोटे से गांव से निकल के एक बीएचयू जैसे संस्थान तक पहुंचना, फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी तक पहुंचना। तो इस तरह की मेरी जर्नी जो थी वो मतलब काफी कह सकते हैं कि स्ट्रगल वाली रही। बट फाइनली मैंने जो सोचा था वो मुझे मिला और मैंने करके दिखाया। जी सर, दैट इज वंडरफुल सर। बहुत अच्छी बात है, आपने स्ट्रगल किया फिर भी आपने सब कुछ हासिल कर लिया, पीएचडी भी आपका हो गया। दैट्स रियली वेरी नाइस। हम ये जानना चाहेंगे कि आपका पीएचडी का जो टॉपिक था, एल्डर्स इन द जी बीपीएल मैम। फैमिली, तो ये टॉपिक आपने क्यों चुना था सर? मैम मैं एक्चुअली रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। मैं शुरू से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखता था, खासकर एल्डरली के साथ। तो एक शुरू से जैसे नहीं है कि मैं जब मेरे स्कूलिंग हो रही थी उस दौरान मैं देखता था कि एल्डर्स के साथ किस तरह का बिहेव होता है। इवन मेरे घर परिवार या रिलेशनशिप या इस जगहों पर देखता था। तो मैं शुरू से मुझे था कि ये एक ऐसा एरिया है जिसपे काम करने की जरूरत है। और धीरे धीरे मैं जब मेरी समझ बढ़ती गई उसके बाद फिर मैंने देखा, मैं अक्सर मतलब काउंटर करता था कहीं पर कुछ ऐसा होता, जैसे मैं ट्रेवलिंग जब भी ट्रेवल करता था, चाहे वो बस हो चाहे वो ट्रेन हो, वहां पे देखता था कि मिसबिहेव किया जाता था एल्डरली के साथ। तो मुझे लगा ये एक ऐसा एरिया है, इनकी वॉइस रेज नहीं ये कर सकते हैं, कोई इनको राइट्स के बारे में नहीं पता है। तो मैंने तभी से एक मेरे मन में एक ठान लिया था, मुझे इस फील्ड में काम करना है, इनकी वॉइस को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। और धीरे धीरे फिर मैंने जब मेरी समझ बढ़ती गई तो फिर मैं जब एकेडमिक में आया, मैंने ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन में भी मैंने मेरा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो मैंने एल्डरली के राइट्स और उनके लीगल राइट्स क्या हैं और उनके कौन कौन से लॉज वगैरह हैं उस पर मैंने काम किया। फिर मैं जब एमएसडब्ल्यू में आया तो मेरा जो पीजी का डिसर्टेशन था वो भी मैंने एल्डरली पे ही एक ऐसा इशू लिया कि उनकी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं उस पर मैंने काम किया। और उसके बाद फिर मैं हेल्पेज इंडिया से जुड़ा। मैंने आफ्टर मैं पीजी आफ्टर कंप्लीटिंग पीजी मैं आई हैव ज्वाइन हेल्पेज इंडिया। हेल्पेज इंडिया एक ऐसा एनजीओ है या संस्था है जो बुजुर्गों पे सबसे बड़ी संस्था, वो मतलब इट इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ एल्डरली। तो उसके साथ मैं जब जुड़ा तो मैंने फील्ड फील्ड ओरिएंटेड एक्टिविटीज मैंने की। तब मैंने देखा कि सिर्फ रूरल एरिया ही नहीं, अर्बन एरिया में भी एल्डरली के साथ बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो फिर उसके बाद फिर मैंने एमफिल किया। अपने जो एमफिल में भी मैंने ओल्ड एज होम्स पे काम किया। मैं जब फर्स्ट टाइम ओल्ड एज होम्स विजिट मतलब पीजी करने, आफ्टर कंप्लीटिंग माय पीजी, आई हैव विजिटेड फर्स्ट टाइम ओल्ड एज होम्स इन लखनऊ। और आफ्टर दैट मैंने वहां पे देखा कि जैसे नहीं होता है कि ओल्ड एज होम्स, हमारी जो इंडियन कल्चर है, हमारे वहाँ तो जॉइंट फैमिली का सिस्टम था। बड़े बुजुर्गों की ही बात घर में ज्यादा चलती थी, वो जो उनकी जो राय मशवरा होता था उन्हीं से सारे काम होते थे। तो इंडियन कल्चर में तो कभी ओल्ड एज होम्स का जिक्र था ही नहीं। हमारी जॉइंट फैमिली ही हमारा कह सकते हैं कि एक बुजुर्गों की एक आश्रय स्थल था। वहां जाके मैंने देखा कि बुजुर्गों के साथ ओल्ड एज होम में वो रहे तो जरूर रहे हैं, लेकिन कभी अगर आप उनको सारी फैसिलिटी मिल रही, रहने खाने की सारी चीजें, जब आप उनके साथ बैठ के जब 2 मिनट बात करें तब उनका जो बोलते ना कि उनका जो दर्द है वो बयां करते बताते कि ये दिखने में तो सब लगता है कि यहाँ पे हम लोग साथ में रह रहे हैं, लेकिन आज भी मतलब उनको इंतजार है कि काश उनके बच्चे आए। और जब मैं एमफिल कर रहा था एक मेरे साथ कोइंसिडेंस हुआ। मैं लखनऊ लखनऊ में एक ओल्ड एज होम है, छवि शांति धाम। तो वहां पर मैंने देखा कि सुब्रत राय सहारा के जो इतने बड़े वो हैं, उनकी खुद की चाची कुमकुम राय वो ओल्ड एज होम में रह रही थी। मैं शॉक्ड था कि इतने हाई फाई प्रोफाइल से वो हैं और वो मतलब यहाँ पे उनको ओल्ड एज होम्स में रहना पड़ रहा है। तब मैंने पूछा, तब वो बताएं कि बच्चों ने हमें मतलब वो नहीं किया। और एक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की प्रोफेसर थी, वो भी रह रही थी, उनके बच्चों ने भी उसे उन्हें छोड़ा था। और एक माँ मुझे वहां पे ऐसी मिली जिन्होंने कहा कि लोग बोलते हैं ना कि बेटे ज्यादातर एल्डर एब्यूज करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, या बेटे ज्यादा वो करते हैं, लेकिन उनकी बेटी ने, नोएडा में वो प्रोफेसर है, वो बेटी लखनऊ लाई थी इमामबाड़ा वगैरह दिखाने के लिए अपनी माँ को, और वो स्टेशन पे छोड़ के गायब हो गई। तो सोचो मतलब वो इसलिए दुखी थे कि लोग बेटों को दोष देते हैं, बोलते हैं ना कि बेटियां माँ बाप के बहुत ज्यादा करीब होती हैं। तो उस समय मैंने देखा कि मतलब
वो माँ का ये कह रही थी कि मुझे तो अपनी बेटी से ही फिक्र, मेरी बेटी ही ने मुझे यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके फिर मुझे यहाँ छोड़ के चली गई। तो मैं सोच के बड़ा शॉक्ड हुआ कि मतलब कि इतनी चीजें इस लेवल पे, एक नहीं होता कि छोटे मिडिल फैमिली या कह सकते लोअर फैमिली से लोग ओल्ड एज होम्स में रह रहे हैं, कुछ इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं जिसके कारण रह रहे हैं, लेकिन इतने हाई फाई प्रोफाइल से लोग। अभी आपने मैम देखा होगा कि ये जो रेमंड एंड रेमंड के जो मालिक गौतम सिंघानिया हैं, उनके बेटे ने भी उन्हें बुढ़ापे के एक पाई पाई को मोहताज कर दिया था। अभी देखा होगा कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी कि एक बेटे ने वो सुब्रत सुब्रत या कौन से शायद उनके, वो अमेरिका से वो उनके उसमें नहीं आए थे अंतिम संस्कार में, कि वो नहीं आए थे यहाँ पे। तो इस तरह की मतलब इस तरह की जैसे ना कि मानवीय संवेदनाएं एकदम मर रही हैं। तो जब मैंने ओल्ड एज होम्स में एक दो बार विजिट किया, जब चीजें देखी इस तरह की चीजें हो रही हैं, तब मैंने फिर ओल्ड एज होम्स पे मैंने काम किया, मैंने रिसर्च किया। और उसके बाद मैंने पाया कि इनका जो एल्डरली के इश्यूज ओल्ड एज होम्स में आने के बाद कम नहीं होते हैं, वो उनके लिए एक जेल या कैद की तरह है। एक एक बुक आई थी मैम, बिमला लाल एक लेखिका है, वृद्धावस्था का सच करके। तो उस बुक में उन्होंने दिखाया था कि जो वृद्धाश्रमों की जो दीवारें हैं या जो उसका जो वातावरण है, वो रात के सन्नाटे में वो चीखें निकलती हैं उनकी कि हमें अपने घर जाना है, हमें अपने बच्चों से मिलना है। तो बड़ा मतलब देख के मुझे बड़ा वो हुआ। उसके बाद फिर मैं मतलब उस पे मैंने काम किया। उसके बाद फिर मैंने उसकी रिपोर्ट भी हेल्पेज इंडिया को मैंने सौंपी कि इस पे भी काम होना चाहिए। और उसके बाद मैं जब पीएचडी में आया, तो पीएचडी में मैंने एक ऐसे ग्रुप पे काम किया कि एक एल्डरली का अलग ग्रुप था कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो फैमिली होती हैं, इकोनॉमिकली बहुत ही पुअर, जो बोलते हैं ना कि हाशिए का समाज या समाज की मुख्य धारा से अलग रहने वाले एल्डरली। कई सारी कैटेगरी होती है ओल्ड एज होम्स में रहने वाले एल्डरली, और सामान्य घरों में रहने वाले एल्डरली, जॉब्स वाले जो लोग रिटायरमेंट के बाद सीनियर सिटीजन होते हैं वो होते हैं। लेकिन बीपीएल ग्रुप के एल्डरली जो पहले से हाशिए पे है और जब ओल्ड एज में पहुंचते तो उनके क्या इश्यूज होते हैं, तो वो मैं जाके उस पर मैंने काम किया। तो मैंने जाना कि मतलब कि स्थिति और भी भयावह है। उस पर मैंने काम किया। उसके बाद मैंने एक मैम अभी तक जो एल्डरली में जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं, जितने लोगों ने काम किया है, तो मैंने सबको स्टडी किया, मैंने देखा कुछ एक मैंने नया किया कि अभी तक जो स्केल बने थे, मैंने अपने रिसर्च में एल्डरली के इस एल्डर पीपल्स को इंडियन पर्सपेक्टिव में स्केल हमने डेवलप किए। अभी तक जितने भी स्केल बने हुए थे रिसर्च के, एल्डरली की प्रॉब्लम्स को जो कोड करते थे, वो ज्यादातर फॉरेन राइटर्स के थे, फॉरेन रिसर्चर्स के थे, वहाँ के बैकग्राउंड पे बेस्ड थे। लेकिन हमने जो स्केल डेवलप किए वो इंडियन पर्सपेक्टिव में डेवलप किए गए, डिजाइन किए गए। और वो क्योंकि इंडिया की अपनी अलग कल्चर है, अपने एल्डरली के अलग इश्यूज हैं, उस पर मैंने काम किया। उसके बाद फिर मैंने एक मॉडल भी प्रपोज किया था, जेरंटोलॉजिकल सोशल वर्क मल्टी इंटरवेंशन मॉडल। अगर उस मॉडल को अप्लाई किया जाए, जितने भी जो एनजीओज वगैरह हैं या जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो एल्डरली वेलफेयर के लिए जो काम कर रहे हैं, तो उस मॉडल के थ्रू उनको काफी बेनिफिट हो, क्योंकि वो जो मॉडल है वो इंडियन पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया गया है, बनाया गया है। तो इस पे मैंने काफी काम किया, मैंने एक बुक पे भी काम किया और कई सारे आर्टिकल वगैरह हमने फिर मैंने अभी भी मैं एक काउंसलर भी हूँ मैम। और जहाँ कहीं भी एल्डरली से रिलेटेड कोई भी इशू होता है, कुछ भी होता है, तो मैं अपने लेखन के माध्यम से या कह सकते हैं कि हेल्पेज इंडिया के माध्यम से मैं उसका वॉलेंटियर हूँ, तो उनको मैं इन्फॉर्म करता हूँ। उसका टोल फ्री नंबर भी बन गया अभी, 1 1 3 4 5 6 7 करके एक नेशनल एल्डर हेल्पलाइन जो जारी हुई है, उसके लिए मैं लोगों को अवेयर करता हूँ। अगर कोई भी किसी भी बुजुर्ग के साथ कोई एब्यूज होता है या किसी भी तरह के इश्यूज होते हैं, तो आप लोग उस टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए और उनको तुरंत इमीडिएटली मतलब रिलीफ मिलता है या एक्शन होता है उनके खिलाफ। तो ये मतलब अभी भी मैं कंटिन्यू, मेरे रिलेशनशिप में या कहीं पर भी कुछ होता है तो लोग मुझे इसलिए याद करते हैं कि उसको फोन करो, ये एल्डरली का इशू है या वो एल्डरली पे काम कर रहा है, उसका एक्सपर्ट है। तो ये मतलब मेरी जर्नी कंटिन्यू, मैं इसी फील्ड में आगे काम भी कर रहा हूँ। तो ये अभी तक ये जर्नी है और आगे भी मुझे मैम काम करना है, काफी ओल्ड एज होम्स वगैरह पे और जो नए नए शोज आ रहे हैं, इस पे भी मुझे अभी काम करना है। बहुत 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 अच्छा भाई साहब, इट इज वेरी नाइस। ये सुनकर हमको बहुत अच्छा लगा कि भाई आप उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो थोड़ा सा वीक हो चुके हैं, थोड़ा सा कमजोर हो चुके हैं थोड़े बहुत, और लोग उनका फायदा उठाते हैं। वो घर वाले ही रहते हैं अपने नजदीक। जैसे आपने कहा, एक बेटी के किस्सा आपने सुनाया। हमेशा हम बेटे पे दोष देते हैं, कभी कभी हमारे बेटियां भी बहुत बहुत क्रूरता से बिहेव करते हैं।
So that's really nice. I really appreciate you for your work and hats off to you for this beautiful work that you're doing, sir. बहुत बहुत अच्छा काम कर थैंक यू रहे मैम। हैं। और ज्यादा लोग भी आपकी तरह आना है सामने, जो युवा लोग जो है सामने आकर इसमें और थोड़ा सा हिस्सा लेना है और हाँ जी मैम। इसमें बदलाव लाना है। यस डियर। सर अभी आप, मैम हाँ जी बोलिए सर, जी बोलिए। मेरा मतलब युवाओं के लिए मैम, यूथ के लिए अभी मेरा मैसेज बस इतना है कि वो एक बार महीने में या हफ्ते में, अगर उनको जब भी समय मिले, वो एक बार ओल्ड एज होम्स जरूर विजिट करें, जहाँ तो उनको मतलब खुद ही अपने आप वो सेंसिटिव होंगे उस इश्यूज पे, खुद ही वो जानेंगे कि वहाँ एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। तो आई थिंक एवरी यूथ शुड बी विजिट ओल्ड एज होम्स एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। यू आर वेरी राइट, आप सही कहा, आपने सही शेयर किया। सर एक छोटी सी कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों के मन में, ये सीनियर सिटीजन कब बनते, वो एज क्या है, एज लिमिट। तो ओल्ड एज होम में जाने का जो उनको है, समझो थोड़े लोग, बहुत सारे लोग हैं, उन लोग एक उम्र होती है जहां सीनियर सिटीजन होम में जा सकते हैं अपने इच्छा के साथ, या घर वाले भेज देना चाहते हैं। व्हाट इज दैट एज लिमिट दैट दे कैन एंटर इनटू द सीनियर ओल्ड एज होम? मैम इसके लिए तो एक जो पैरामीटर अभी बना है, ज्यादातर जो माना गया है 60 प्लस। 60 प्लस की जो, जैसे अभी इंडिया में जो एक पैरामीटर है कि यहाँ पे जो नेशनल इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो है, उसमें जो क्राइटेरिया बनाया गया पेंशन का, वो भी 60 माना है उन्होंने। मिनिमम 60 प्लस मतलब मिनिमम एज होनी चाहिए 60। इसके अलावा अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें, तो यूनाइटेड नेशंस के एक ब्रांच है पॉपुलेशन फंड, उसने भी मतलब जो एज मानी है एल्डर्स की, वो भी 60 प्लस ही माना है। बाकी ग्रेट ब्रिटेन की अगर हम बात करें, तो वहां पे एक फ्रेंडली सोसाइटी एक्ट है 1850, उसमें भी 60 प्लस को ही माना गया है। लेकिन अगर हम, ये तो एक बोल सकते हैं ना कि एक इंस्टीट्यूशनल डेफिनेशन है कि 60 प्लस को हम मतलब एल्डरली मानेंगे या सीनियर सिटीजन्स मानेंगे। लेकिन मैम अगर जो हम इंडियन हिस्ट्री में जाते हैं, इंडियन कल्चर में जाते हैं बैक में, तो वहां पे 60 प्लस को नहीं माना गया है। जैसे हमारी जो आश्रम व्यवस्था थी, उसमें जो हमारा चौथा आश्रम जो था, सॉरी, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, उसमें जब वो प्रवेश करता था तो माना जाता है कि वो ओल्ड एज होम्स में गया है। इसके अलावा अलग अलग जो हमारा वैराग्य शतकम जो एक ग्रंथ है, और कई सारे जो इंडियन ग्रंथ, वहां पे जो उन्होंने ये माना गया कि जब शरीर छीड़ हो जाए या दिखना कम बंद हो जाए, या मतलब एक दिन उनकी फिजिकल जो चैलेंजेस एक्टिविटी जो कम होती हैं, या तो उनको माना जाता है कि वो बुजुर्ग हो रहे हैं। लेकिन एथेंटिक जो डेफिनेशन है वो यही है, 60 प्लस माना गया है। फॉरेन में भी, यूनाइटेड नेशंस में भी माना है, और इंडिया में भी माना गया है। इसकी तीन कैटेगरी मैम है। जो 60 to 70 है, उसको बोलते हैं यंग ओल्ड एज। अकॉर्डिंग टू जो सेंसस 2011, 62% जो पॉपुलेशन है इंडिया में, वो सबसे ज्यादा यंग ओल्ड एज, यंग यंग सीनियर सिटीजन्स की है, जो 60 to 79 है। उसके बाद 79 to 80 जो है, वो है ओल्ड ओल्ड एज, एक मीडियम वाली। फिर है जो फिर 80 प्लस वाले जो है, वो बोलते हैं ओल्डेस्ट ओल्ड, मतलब बुजुर्गों से भी ज्यादा बुजुर्ग वाली एज। तो ये तीन कैटेगरी हैं, यंग ओल्ड एज, मतलब ओल्डर एज और ओल्डेस्ट एज करके है, ये चीजें हैं। जी सर, जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर शेयरिंग दैट, थैंक यू वेरी मच। सर अभी आप इस फील्ड में आ चुके हैं और कर भी रहे हैं काम, क्या आपके दोस्त, आपके परिवार वाले आपके साथ है, या वो लोग थोड़ा सा हट के पीछे ठहर जाते हैं और आप खुद अकेले इस काम में मसरूफ हैं सर? नहीं मैम, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, और कभी कभी कुछ चैलेंजेस भी आती हैं, तो ये इतना मुझे सेटिस्फेक्शन है मैं ये जो काम करता हूँ। जैसे कभी किसी रिलेशनशिप में या घर परिवार या आसपास कोई इशू हुआ, या बच्चे मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं अपने पेरेंट्स का, या घर से निकाल दिया है, या मारपीट हो रही है, या जैसे ना कि बहुओं के साथ, इन लॉज के साथ, या उनके बच्चों के साथ, तो लोग मुझे कॉल करते हैं कि उससे बात करो, वो कुछ आपको मतलब कुछ हेल्प कर सकता है। तो मैं उनको, पहले तो मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ कि मतलब जितना भी हो सकता है कि आप लोग ऐसा मत करिए, इसलिए प्रयास करते। जब वो नहीं मानते हैं, तब मैं उनके जो लीगल राइट्स हैं, वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, उसके अकॉर्डिंग, अगर कोई बच्चे पेरेंट्स का मेंटेनेंस नहीं करते हैं, तो उनको अगर कंप्लेन करने पे
कोर्ट उनको आदेश देगा कि उनको सिर्फ 6 महीने की जेल हो सकती है और 10,000 रुपये उनका जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा उसकी एक और सेक्शन है जिसमें कहा गया है, अगर गलती से बच्चे, जैसे नहीं होता कि पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम करा लेते हैं, उसके बाद फिर उनको बाहर कर देते हैं, तो अगर पेरेंट्स कंप्लेन करें तो उनकी जो प्रॉपर्टी एक बार चली गई है वो फिर से वापस आ सकती है। तो कई सारे लीगल राइट्स हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसमें भी एक सेक्शन है कि अगर जैसे माना जाता है ना कि जो हिंसा होती है या वायलेंस वो सिर्फ विमेन्स के साथ होती है, लेकिन अगर कोई 60+ विमेन या मेल है उसके साथ अगर कुछ हिंसा अगर हो रही है, तो उसके उसमें भी एक सेक्शन है कि उसमें भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे इंडिया में सबसे मैम जो सबसे गलत बात है वो मतलब सबसे बड़ी एक ये इशू है कि यहाँ के लोग अपने लीगल राइट्स के लिए अवेयर नहीं है, खासकर जो एल्डरली हैं वो बिल्कुल भी मतलब अवेयर नहीं है। और कुछ लोग कंप्लेन करते भी हैं, लेकिन जब जेल जाने की बारी आती है बच्चों की, तो वो सारी कंप्लेन वापस ले लेते हैं कि मतलब मेरा बच्चे को मैं जेल कैसे भेज सकता हूँ। ये बहुत बड़ी कमी इस एक्ट की है, वरना अगर इस एक्ट को अप्लाई किया जाए तो इंडिया में किसी भी तरह का वायलेंस सीनियर सिटीजन के साथ नहीं होगा, कोई एल्डर एब्यूज की कोई भी घटनाएं नहीं होंगी। तो ये थोड़ा सा एक इशू है यहाँ पर। अभी मैम मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि मेरे ही मतलब एक रिलेशनशिप में या कह सकते हैं कि आस पास पड़ोस में मेरे ही गांव में एक बुजुर्ग थे, उनके साथ मतलब उनके 4 बच्चे थे, वो लोग मतलब उनके साथ उनको टॉर्चर करते थे, उनकी जो पेंशन आती थी वो अपने नाम कर लेते थे, और उनका ट्रीटमेंट वगैरह नहीं कराते थे। ये उनका ये कहना था कि अब ये बूढ़े हो गए हैं, ये प्रोडक्टिव नहीं है, तो जो अनप्रोडक्टिव है तो इनको ट्रीटमेंट करा के क्या होगा। वो बैंक के चक्कर लगाते थे, उनकी पेंशन पता चलती थी कि उन्होंने बच्चों ने ज्वाइंट अकाउंट कराया वो कर ले, तो मैंने फिर उनकी एक ट्रीटमेंट के दौरान एक बार उनकी उनकी डेथ हो जाती है, मतलब ट्रीटमेंट के दौरान जब मैं उस समय महाराष्ट्र में था, तो मैंने उस पोस्ट को एक लिखा, मैंने फेसबुक पे शेयर किया कि आज एक और बुजुर्ग जिंदगी की जंग हार गया। मेरा वो पोस्ट करने से पूरा एकदम जैसे नहीं होता कि फोन्स आने लगे, ये सब सारी चीजें होने लगी, और मेरे खिलाफ एफआईआर की भी मतलब मुझे धमकी दी गई। लोग उनके बच्चे कोर्ट गए, मतलब पुलिस गए, और मेरे घर वालों को टॉर्चर किया कि मतलब आपके लड़के को समझा दो वरना ये जितना भी सोशल वर्क कर रहा है तो इसको ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन हाँ, वहां पे मैं ये उनको थैंक्स बोलना चाहूंगा पुलिस वालों को। उन्होंने कहा इस लड़के ने बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सीनियर मतलब सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस मुद्दे को रेज किया है, अगर इसमें जरा से भी सच्चाई हुई तो लीगल एक्शन आपके खिलाफ उल्टा होगा। तो वो डर गए क्योंकि वो तो दोषी थे ही, तो उन्होंने फिर अपनी कंप्लेन वापस ली, और मैंने बोल दिया कि मेरे पास सारे प्रूफ हैं, अगर मैं एक बार जाके जो सीनियर सिटीजन एल्डर सेल जो है, लखनऊ में एक संस्था है पति परिवार कल्याण समिति, डॉक्टर इंदु सुभाष उसकी मतलब प्रेसिडेंट है, और इंदु सुभाष मैम इसी में काम कर रही हैं। तो मैंने कहा कि मैंने बताया, तो फिर जब उनको मैंने बताया कि ये चीजें हो सकती हैं तब वो डरे और उन्होंने कंप्लेन फिर वापस ली। हाँ, लेकिन ये है कि मैं मेंटली थोड़ा सा परेशान हुआ था कि क्योंकि मेरी फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा है। हाँ, लेकिन मैम उससे एक बड़ी जो एक अवेयरनेस ये आई कि अब अगर उस एरिया में या उस क्षेत्र में कोई घटना अगर एल्डरली को लेकर अगर कोई है, तो लोग मतलब इसलिए जो डरते हैं कि उसको ना पता चले, अगर उसको पता चलेगा तो वो इन लोगों को छोड़ेगा नहीं। मतलब एक उस तरह का ये चीजें हैं, लोग थोड़ा सा डरते हैं कि ऐसा करने के लिए, कि अब कुछ जो सीनियर सिटीजन है वो धमकी भी देते हैं कि अगर अब हमें कुछ करोगे तो हम कंप्लेन कर देंगे, तो ये हो जाएगा, इस तरह की चीजें हैं। तो ये थोड़ा सा एक मेरे लिए बड़ा वो मतलब है कि कुछ लोग थोड़े थोड़े से करके लेकिन अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे। जी 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 सर। और आज आपने यहाँ पर इस मंच पर इंटरनेशनल फैब टॉक्स पे आपने बहुत अवेयरनेस क्रिएट किया यहाँ पर। बहुत बहुत अच्छा किया आपने, थोड़ा सा वक्त निकाला हमारे लिए और ये शेयर कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि एल्डरली और सीनियर सिटीजन्स के भी हक होते हैं और उन पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। अगर अत्याचार हो रही है तो उसकी कंप्लेन कीजिए, आप नहीं सहना उसको, खामोशी से नहीं सहना। सर मेरे पास एक प्रश्न है। बहुत अक्सर देखा गया है ये जो सीनियर सिटीजन्स है अपने जबान नहीं खोलते, अत्याचार सह लेते हैं, मेरा ही खून है ना, हमारा ही बच्चा है ना, मेरा ही बच्चा है ना, मेरा ही बेटी है ना, तो ऐसा वो लोग या मेरा ही बेटा है, तो कंप्लेन नहीं करते या कुछ बोलते भी नहीं, तो उन लोग ओपनली शेयर नहीं करते, खामोशी से पूरे अत्याचार उन लोग सह लेते हैं। तो ऐसे माताएं को, मदर्स को और फादर्स को आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसे पेरेंट्स को? यस सर। गवर्नमेंट ने
एम आई ऑडिबल मैम? यस यस, प्लीज गो अहेड। मैम अभी इंडियन गवर्नमेंट ने एक नेशनल एल्डर हेल्पलाइन जारी की है, जिसका वो है 14567। ये टोल फ्री नंबर है। तो यहाँ पे अगर किसी भी सीनियर सिटीजन के साथ कोई भी घटना या कुछ भी होता है, तो वो कॉल कर सकते हैं और उनकी जो पहचान है वो छुपाई जाती है कि तो उसके तुरंत एक्शन होता है। तो अभी तक ये नहीं था, अभी पिछले 2 साल पहले ही ये स्टार्ट हुआ है। तो ये अगर वो उस पर कंप्लेन करें तो जो नजदीकी पुलिस स्टेशन होता है वो लोग जाते हैं और हेल्प भी करते हैं। मेरा मतलब सवाल ये है सर कि भाई वो लोग आ रहे ही नहीं सामने, वो आना भी नहीं चाहते हैं कि रहन दो, ये ही मेरा जिंदगी है, शायद मेरा जिंदगी ऐसी कट, मेरा हाँ तकदीर मैम। ये है। तो आगे आकर कंप्लेन करने में भी वो इच्छा नहीं रखते, वही ऐसे ही सह लेते वो, या घर छोड़ के कहीं चले जाते, ऐसा। मैम हाँ, एक ये है ना कि उनको ये सोच बनी रहती है कि कंप्लेन करेंगे भी उसके बाद भी घर में ही तो आएंगे, तो फिर से वही चीजें होंगी, तो इसलिए डरते हैं। लेकिन मैम अभी जो हेल्पेज इंडिया की जो रिपोर्ट आई 2022 की, जो आई 2022 की जो रिपोर्ट आई थी एल्डर एब्यूज की। हेल्पेज इंडिया हर साल एक रिपोर्ट जारी करती है एल्डर एब्यूज करके, जो एल्डर्स के साथ जो मिसबिहेव होता है, तो उसको लेकर कई सिटीज वगैरह में सर्वे वगैरह होता है। तो उसमें ये कहा गया कि 2022 वाले जो रिपोर्ट आई उसमें ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स ने अब रिपोर्ट उनके में इंक्रीजमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, और वो कंप्लेन कर रहे हैं। बहुत ज्यादा शिकायतें आई और सबसे ज्यादा जो शिकायतें आई थी वो महाराष्ट्र से आई थी। वो अच्छी बात है हाँ, सुनने के लिए, यूपी। दैट्स नाइस। और मैम यूपी बिहार में थोड़ा सा अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों में, तो नहीं आ रही है। और केरला से भी सेकंड नंबर पे केरला था, क्योंकि इंडिया में केरला ऐसा स्टेट है जो जहाँ पे सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन्स हैं, और आसाम ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे कम सीनियर सिटीजन्स हैं। जी जी सर, जी सर, आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स, डेटा और डिटेल्स है, यू आर शेयरिंग इट वेरी वेल सर। हैट्स ऑफ टू यू फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दिस। सर अभी थैंक यू मैम। हम एक ऐसा बात कहेंगे सर, तो आप जब ये काम करते हैं तो आपको ऑलरेडी एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ चुका है, कोई धमकी आपको दे दिया, और आपका फैमिली को भी ऐसा धमकी दिए, तो जब आप जी ऐसे मैम। सिचुएशन फेस करते हो खुद पर्सनली, तो आप किसका सहारा लेते हैं, पुलिस का या मीडिया का? मैम मीडिया को तो नहीं मैं लेता हूँ, क्योंकि और ज्यादा मुद्दा सेंसिटिव हो सकता है। मैं क्या करता हूँ, जो लीगल एडवाइजर्स हैं हमारे, उनसे मैं कंसल्ट करता हूँ कि ऐसा मैंने किया है, क्या हो सकता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं, और हेल्पेज इंडिया के कुछ जो वहाँ के जो मेंबर्स हैं उन लोगों से मैं बात करता हूँ। तो जैसे मैं जब हुआ था बहुत ज्यादा परेशान, तो उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने मतलब कहा आपने कुछ गलत नहीं किया है और हम सब लोग आपके साथ हैं। तो मुझे थोड़ा सा और हौसला मिला कि हाँ, मैंने गलत नहीं किया और मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो उससे मैं जब भी परेशान होता हूँ तो उन लोगों से मैं कंसल्ट करता हूँ, तो वो लोग मुझे इस काम के लिए अप्रिसिएट करते हैं और कहते हैं कि आप करते रहिए, बाकी हम लोग हैं साथ में। जी 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 भाई साहब, दैट्स वेरी नाइस। ये अच्छा लगा हमको भी सुन के कि भाई है आपके साथ कोई साथी है जो सपोर्ट करते हैं, जो बैक सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई एक काम अच्छा है, आप कंटिन्यू कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो अकेले नहीं लड़ सकते, अगर अकेले लड़ने गए तो भी लोग हमको क्लैश करने के लिए आ जाएंगे, दे विल हैव दिस opposition इन द माइंडसेट और मे बी इन द बिलीफ्स एंड थॉट्स। यस यू हैव, द लीगल सिस्टम भी है आपके साथ। तो आप जो सही काम जी कर मैम। रहे हैं, सही पथ पर जा रहे हैं आप, तो भारत सरकार और या भारत के जो लॉज हैं आपके साथ हैं और हमारे साथ भी। सर हम ये पूछना चाहेंगे कि अभी ये जो हमारा सेशन जो चल रही है, अगर बाहर बाहर कोई, यूपी के बाहर कोई दूसरा स्टेट से कोई बंदा देख रहा है, कोई माँ या बाप, कोई भी सीनियर सिटीजन देख रहे हैं, और वो आपसे संपर्क करना चाहेंगे, आपसे एक दो बातें करना चाहेंगे, तो आप के साथ संपर्क कर सकते हैं इजीली, या सिर्फ आप यूपी वालों हाँ। के लिए काम करते हैं? नहीं मैम, मैं बिल्कुल कोई भी अगर मुझे कॉल करता है रिगार्डिंग मतलब एल्डर्स इशूज, तो मैं उनसे बातचीत करता हूँ और जितना संभव हो सकता है मैं उनको हेल्प करता हूँ। क्योंकि हेल्पेज इंडिया मैम जो संस्था है, ये इंडिया के सारे स्टेट्स में इसके ब्रांचेज हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मतलब हेल्प, उनका नंबर वगैरह कुछ कॉन्टेक्ट है मेरे पास, मैं उनको दे देता हूँ। या तो मैं सबको यही बताता हूँ कि नेशनल एल्डर हेल्पलाइन है, वहां पे काउंसलिंग भी की जाती है। अगर आप कोई इशूज अगर है तो उनको प्रोवाइड कराते हैं, वो लोग बात करते हैं। बाकी अगर जो जानकारी मेरे पास है, मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ तो मैं करता हूँ।
आए दिन मेरे पास कई सारे फोन कॉल्स आते हैं इस चीज को लेके, या कभी कभी कुछ लेक्चर्स वगैरह के लिए आते हैं कि जैसे वर्ल्ड एल्डर्स डे है या वर्ल्ड एल्डर्स अब्यूज अवेयरनेस डे है, तो मैं इस पे लेक्चर वगैरह के लिए भी जाता हूँ, या कोई सेमिनार वर्कशॉप है तो मुझे बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ। जी 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 सर। सर अभी अभी आपका नंबर यहाँ पर शेयर कर सकते हैं इस मंच पे, या हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या शेयर कर पाओगे नहीं यहाँ? मैम, बिल्कुल मैम, या यहाँ पे मैं एक दो शेयर बार कर अपना सकता, नंबर आई डोंट रिपीट हैव एनी कीजिए। इशू। Yeah, because such that if any of the senior citizens who are watching, you could really call sir and you could save yourself from the torture or abuse that you are undergoing. कोई अत्याचार हो रही है तो हिम्मत करके एक फोन आपको लगा दे तो उनका जिंदगी बच जाता है। आपने कहा, आपने फेसबुक के पेज पर आपने कुछ डाला कि भाई आज एक सीनियर सिटीजन हार चुका है जिंदगी में, तो ऐसा और एक नहीं होना। तो आप अपना नंबर शेयर कीजिए ताकि हमारे दर्शक जो है अ, फायदा एट उठाकर जीरो आपको फोन कर सकते हैं। यस सर। यस मैम, 8010581128। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8010581128। जी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग, दैट्स रियली वेरी नाइस। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, अभी आपके काम के अलावा आप इतने पैशनेट हो अपने काम को लेकर, अपने दिल से मन से पूरा आपका पूरे इन द होल, आई मीन you're completely into that, I can understand that you want to do so much। तो ये पूछना चाहूंगी मैं, क्या आप अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालते हैं, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए? कहीं आप हॉलीडेज पे कहीं जाके आते हैं, या यू 24/7 लाइक इनटू दिस, थोड़ा सा अपने लिए वक्त भी निकालते हैं सर? बिल्कुल मैम, मैं निकालता हूँ, और जब भी मैं मुझे समय मिलता है मैं ज्यादातर टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ, क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो खुद एक सीनियर सिटीजन है और उनकी एज अबाउट 80 के मतलब अराउंड है। तो मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। इवन जैसे मुझे छुट्टी मिलती है मैं तुरंत जाता हूँ, इवन मैं फोन पे भी बात करता हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम कभी किसी डिप्रेशन में या कोई वैसा कोई स्ट्रेस वगैरह में है, तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं ये सबसे भी कहना चाहूंगा, ये एक बहुत अच्छा मतलब माध्यम है। मैं अपनी जो कुछ चीजें जो मैं लिखता हूँ, मैं एक कह सकता हूँ मैं एक पोएट भी हूँ, तो मैं लिखता हूँ एक डायरी वगैरह या कुछ पोएम्स वगैरह वो लिखता हूँ। या कह सकते हैं कि कभी कभी कुछ जो वहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेज अगर हैं तो वहाँ पे मैं विजिट करने जाता हूँ और कुछ समय वहाँ पे स्पेंड करता हूँ। और मंदिर वगैरह है या जहाँ पे कुछ थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को लेके कुछ अगर वैसा है तो मुझे वहाँ बड़ी शांति मिलती है, वहाँ पे जाना, बैठ के कुछ समय स्पेंड करना। तो ये मैं करता हूँ। या कभी कभी कुछ सत्संग कीर्तन वगैरह अगर हो रहा है तो मुझे अच्छा लगता है उनके बीच बैठ के, जैसे कुछ समय के लिए सब कुछ भूल के उनके उनके उसमें रम रम जाना, या वैसे उस तरह से करना, तो ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। जी 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 हम ये पूछना चाहेंगे सर, अभी जब आप कहीं फंक्शंस में जाते हैं, या आप ऐसा ट्रैवलिंग में जाते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं या फंक्शंस में जाते हैं, या बस ऐसे ही आप मार्केट एरिया में कहीं ऐसे घूमने जाते हैं, क्या आपका नजर हमेशा और कान हमेशा शार्प कि भाई आसपास क्या हो रही है? तो हमेशा आप 24/7 अलर्ट कि भाई कहाँ पर क्या हमें दिखाई दे या क्या सुनाई दे हमको। शायद यहाँ पर कुछ अत्याचार होती होंगे किसी के साथ, किसी सीनियर सिटीजन के साथ। तो आप हमेशा, आई थिंक, यूल बी वेरी एक्टिव ऑल द टाइम, एम आई राइट? यस मैम, यू आर राइट। यस, यस आई गेट दैट। सर, अगर आपके तरह हमारे जो युवा लोग हैं या मिडिल एज लोग हैं या जो भी हैं, सीनियर सिटीजन भी हो सकते हैं, जो ये काम करना चाहेंगे जैसे आप कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या आप सलाह या सजेशन देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम सबसे बड़ा तो मैम मैसेज है कि मेरा ये है कि वो अपने ही घर से शुरुआत करें। वाह। उनको देखें कि सबसे पहले कि वो कितना टाइम अपने पेरेंट्स को दे रहे हैं। आजकल जो जितने भी ना डिजिटल वाला जो पूरा एक एरा पूरा वो चल रहा है कि बच्चे अपने ही मोबाइल में बिजी रहते हैं, घर में पेरेंट्स उनसे बात करना चाहते हैं, वो चाहते हैं हमारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, लेकिन नहीं देते। जैसे नहीं होता कि अपने इंडियन कल्चर में था कि वो दादा दादा नाना नानी परियों की कहानी जो नाना नानी से सुनते थे बैठते थे, तो वो चीजें नहीं है। तो वो फिर से हमें वो करने की जरूरत है कि एटलीस्ट दिन में 5 मिनट हम निकाल के समय अपने पेरेंट्स से हंस के अगर हम बात कर लेते तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साथ साथ कभी कभी अगर समय मिले तो लोगों को ओल्ड एज होम्स विजिट करना चाहिए। मैम वहां जाने से एक
एक मतलब कि जीवन की सच्चाई पता चलती है कि एक्चुअल में क्या चीजें हो रही हैं, हम जो चीजें कर रहे हैं क्या हो रहा है। क्योंकि वहां पे जो लोग जाते हैं वो हमारे अपने के बीच से ही लोग जाते हैं, हम ही लोग उनको वहां से निकाल के वहां तक पहुंचाते हैं। तो जब वहां जाते हैं तब हमें पता चलता है कि किस तरह की चीजें हो रही हैं। ये मैम करना चाहिए। और शुरुआत घर से ही अगर हो, क्योंकि मैम मैंने जो शुरुआत की थी वो मैं अपने घर से ही किया था। जब जब से मेरी समझ बढ़ी, मैं जानने वाला हुआ। अगर जैसे होता है ना कि अगर मेरे भैया या कोई चाचा या कोई भी जैसे कभी बड़े जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं उनसे अगर वैसे बात करें कि आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं। अब दूसरा मैम थोड़ा सा इसके बारे में जो लीगल राइट्स हैं, एक एटलीस्ट एक जो मिनिमम जो अवेयरनेस है वो लोगों को होनी चाहिए। वो जब रहेगी तो वो लोग लोगों को बता पाएंगे कि हाँ ये आपके लीगल राइट्स हैं, ये बहुत जरूरी है। इसके बारे में सबको अवेयर होना होगा। ये बहुत ज्यादा मतलब है मेरे हिसाब से। जी सर, जी सर, दैट्स वेरी नाइस। सर अभी एक सवाल ऐसा है, थोड़े बच्चे जो है, जो आज के युवा पीढ़ी जो है, नाराज है, गुस्से में है, और अपने माँ बाप से बहुत बहुत नाराज है, क्योंकि उनका बचपन ठीक नहीं था। माता माँ बाप लड़ रहे थे उनके सामने, या बाप पी के आता घर को, शराब पी के आते और लड़ाई करते माँ से, और माँ भी कभी कभी वो गुस्सा बच्चों के ऊपर निकाल देती है कभी। तो ऐसा, और ऐसे ऐसे उनका बचपन चला गया, और अभी वो युवा बन चुके हैं, यूथ बन चुके हैं, यंग बन चुके हैं, 20s में हो सकते हैं। तो वो गुस्सा अभी भी है कि मेरे माँ और बाप हमें सही पालन नहीं किया, तो हम क्यों करें। तो उन लोग सही हमको परवरिश नहीं करे, तो हम एक दिन भी ऐसा नहीं है हमारे जहन में कि भाई हम खुशी से एक घर परिवार की तरह हम रहे। बार बार देखा हमारे पापा मम्मी को मारते या डांटते या गंदी गालियां देते। तो ऐसे माँ बाप, ऐसे बाप या माँ, वट, तो क्यों हम उनका कोई रिस्पेक्ट करें, तो उनको छोड़ दे तो ही अच्छा होगा। तो थोड़े लोग ऐसे भी सोचते हैं, अपने ही माँ बाप को माफ नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो उनका बचपन वैसा बहुत बुरी हालत से गुजरा था। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? मैं मेरा उन बच्चों से बस इतना सवाल है कि आज भले ही पेरेंट्स ने आपके लिए कुछ नहीं किया हो, या आप अपने मेहनत से वहां तक पहुंचे, या आपका बचपन उस तरह से नहीं बीता है जो आजकल होना चाहिए। अगर वो माँ बाप ही नहीं होते तो आप आते कहाँ से। आपका कोई एग्जिस्टेंस होता, आप आपकी कुछ भी आप कहें, आपकी पहचान तो वही होगी ना कि आपके बाप का नाम क्या था, आपके आपके मॉम कौन थी। तो अगर माँ बाप ने ही जन्म नहीं दिया होता तो आपका जीवन कहाँ होता, आप कहाँ, आप होते ही नहीं, आपका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। तो ये कोई कहे, और कभी भी मैम कोई माँ बाप मुझे नहीं पता कि जैसे अपने वहां कहावत है कि माता को माता वाला, कि माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती कुछ भी हो। तो मुझे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, कोई भी माँ बाप इतने वो नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए हो गए। और इवन माँ बाप अगर कभी कभी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो भी उसके पीछे बच्चों की केयर छुपी होती है ना। वो बच्चों के लिए केयर करते हैं, उनकी मतलब कि उनके लिए कंसर्न होते हैं कि हमारा बच्चा इस तरह से रहे। हाँ, आजकल के बच्चों को ज्यादा लगता है कि उनकी रोक टोक, उनको अनावश्यक इंटरवेंशन लगता है कि मतलब वो हमें रोक टोक रहे हैं, तो ज्यादा वो अपना खुला जीवन जीना चाहते हैं। तो वहां पर एक ये है कि थोड़ा सा मतलब बदलते परिस्थितियों के अनुसार माँ बाप को भी थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। और कभी भी मतलब बच्चों को ये नहीं मतलब ये सोचना चाहिए कि माँ बाप ने हमारे साथ किया तो इस तरह से। बस इतना जानना चाहिए कि अगर वो हमें जन्म ही नहीं देते तो हमारा अस्तित्व कहाँ होता, आज हम कहाँ होते। जैसी भी परिस्थिति रही हो, जो भी रहा हो, उन परिस्थितियों में आपको पाला ना, हो सकता हो आपको बेहतर जीवन ना दे सके हो या वो तो चीजें ना दे, लेकिन आपको पैदा तो उन्होंने ही किया, उन्हीं की वजह से तो आप आए, मतलब आपका अस्तित्व है। तो ये चीजें मतलब मेरा बस कहना है उनके लिए। जी जी भाई साहब, बहुत अच्छी सलाह है वो, दैट इज वेरी नाइस, थैंक यू फॉर दैट ब्यूटीफुल मैसेज। सर अभी एक सवाल ऐसा है, हमने देखा है एक ऐसा क्लाइंट था हमारा, एक जाना पहचाना एक भाई साहब थे। तो वो कहता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं खुद इतना दुख, और मेरे मन में इतना दुख है, इतने सारे यादें हैं, कड़वी यादें हैं, मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। और इस वजह से मैं बहुत मेरे माँ बाप दोनों को हेट करता हूँ, मैं उनको पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अभी गम में डूबा हूँ। चाइल्ड ट्रॉमा एक ऐसी चीज, वर्ड है, चाइल्ड ट्रॉमा। तो वो चाइल्ड ट्रॉमा एडल्ट में जब आती है, एडल्ट स्टेज में, तो वो डिप्रेशन या एंजाइटी या ऐसे कुछ अ, मानसिक बीमारी के रूप में आ जाती है वो। तो वो अपने माँ बाप को दोषी हम्म। ठहराते हैं। तो ये जो बंदा है, तो इन्होंने भी ऐसे ही कहा था कि भाई मेरे पेरेंट्स ही
रिस्पॉन्सिबल है, जो मेरे मानसिक हालत अभी जो है वो मेरे माँ बाप की वजह से ही है जो मैं अभी, तो मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं उनको माफ नहीं कर पा रहा हूँ मेरे माँ बाप को। तो ऐसे बहुत सारे भाई बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपने माँ बाप को माफ करके आगे चले, आगे का जिंदगी देख के मूव ऑन। मैम जैसे मैम एक ये एक सैंपल पे हम पूरी पॉपुलेशन को जनरलाइज नहीं कर सकते, सिर्फ एक सैंपल है। मैं उन बच्चों से या उनके लिए मेरी ये सलाह है कि वो सलाह मतलब एक मेरी एडवाइस है, एक बार वो ओल्ड एज होम्स जाएं। जैसे मान लो उनकी आज स्थिति ये है, उनके पेरेंट्स ने किया, वो जो एक पूरा एक एक समाज का वो हिस्सा जिसने जिसने कि एक अपना पूरा जीवन दे दिया, उन्हें उनके बच्चों मतलब वो भी तो कैसे है वहां पे, ये भी तो समझना उन्हें होगा ना कि उनको आखिर वहां तक कौन लाया, उनकी क्या गलती थी। आज आपको आपके माँ बाप ने थोड़ा सा मतलब वो किया तो आप उसको सजा माने, लेकिन पूरी जिंदगी, बोलते ना कि पूरी जिंदगी जिम्मेदारियों का बोझ ढोने के बाद आज उनको क्यों बेगाना कर दिया गया। इतने सारे जो ओल्ड एज होम्स खुले हैं वहां पे, तो उनको भी तो बच्चों ने ही तो छोड़ा है ना। तो इस चीज को समझना चाहिए कि एक गलती माँ बाप से हो गई तो, और बच्चे बचपन में कितनी सारी गलतियां करते हैं माँ बाप, बच्चे भले ही कितना भी कुछ करें माँ बाप माफ करते हैं ना, कैसा भी हो। ये बोलते हैं ना कि हमारा आखिर है तो हमारा बच्चा ही, जब वो माफ कर देते हैं वो नहीं छोड़ पाते हैं तो फिर माँ बाप को बच्चे क्यों छोड़ देते हैं। ये सवाल अपने आप से भी करना चाहिए कि जब उन्होंने हमें नहीं छोड़ा तो हम आखिर एक गलती या छोटी सी गलती, इस गलती के लिए हम उन्हें क्यों नहीं माफ कर सकते हैं। अगर हम यही करते रहेंगे, अगर मतलब अपने माँ बाप के साथ हमने ऐसा किया है, तो वो बोलते हैं ना कि एक मैम मंजू दीक्षित की एक कविता है, उन्होंने वृद्धाश्रम पे लिखी थी कि क्यों आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। तो उन्होंने मतलब ये एक उसमें कड़ी थी, एक उन्होंने ये कहा था, पानी आप कर्मों के जनताब बनेंगे, आप भी तो कभी माँ बाप बनेंगे, काल चक्र सबको निचोड़ देते हैं कि आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते। तो ये एक चक्र है, अगर आप अपने माँ बाप के साथ आज ऐसा कर रहे हैं तो कल बच्चे आपके साथ भी वही करेंगे, और ये होता ही है मतलब। तो ये मेरा एक विधान है कि मेरा मानना है कि वो सब भूल के आगे की बढ़े, जो गलतियां हुई वो कुछ कोई कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे के साथ इस तरह की कोई ट्रॉमा हो या इस तरह की कोई चीजें हो। और बच्चे भी तो इतनी सारी गलतियां करते हैं, आज वृद्धाश्रमों में जो पूरा लोग रह रहे हैं वो किसकी गलती से है, अपनी मर्जी से तो नहीं है। कोई माँ बाप कभी नहीं चाहेगा कि वो अपना घर बार बच्चे सब कुछ छोड़ के एक छोटे से कैद खाने में रहे, या एक ऐसे डिब्बे में बंद कर दिया जाए जहाँ पे उनकी सिर्फ वो जी रहे हैं केवल, मतलब ये नहीं कि खाना मिल रहा है खा रहे हैं जी रहे हैं, लेकिन वो जीवन उनका नहीं है। उनको भी थोड़ा अटेंशन चाहिए, उनको भी थोड़ा प्यार या लव अफेक्शन उनको भी चाहिए कि बच्चे वो अपने बच्चों के साथ रहे, टाइम स्पेंड करें। तो ये मेरा सवाल है उनके साथ में। बाकी कुछ काउंसलर काउंसलिंग वगैरह, कुछ काउंसलर वगैरह के साथ भी आजकल जो बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर्स वगैरह खुले हैं, और जेरेंटोलॉजिकल काउंसलिंग के सेंटर्स अभी भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह में एक जेरियाट्रिक यूनिट स्टेब्लिश की जा रही है, जिसमें पार्टिकुलर जो एल्डरली का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन साथ साथ वहाँ पे जेरेंटोलॉजिकल काउंसलर भी अपॉइंट किए जा रहे हैं, वो इस सारे मुद्दों में काउंसलिंग करते हैं और उनको ट्रिमर से बाहर निकालते हैं। तो इस तरह के केसेस होते हैं, तो ये कर सकते हैं। जी जी सर, जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत खुश है कि आप यहाँ पर आकर ये सभी हमको समझाए, हमारे सभी दर्शकों को अच्छी सलाह दिए, और अपने आंख और कान दोनों भी खुला दिया। यू ओपनड इट आउट फॉर अस, आवर आईज एंड ईयर्स, एंड अपना दिल भी। सभी को रिस्पेक्ट करना है अपने पेरेंट्स को, उनको नहीं छोड़ना है। तो आप जैसे होनहार लोग रहना है इस धरती पर सर, आप जैसे, और डॉक्टर श्याम सिंह जैसे बहुत सारे लोग थैंक यू आप मैम, थैंक यू बनना है। मैम। यस सर, लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी मोर इंटरेक्शंस विद यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। और आपने ये भी प्रॉमिस किया है अभी, आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। कल आप भी और शेयर करेंगे, आपने कविताएं बहुत सारे लिखे हैं, तो वो भी आप शेयर करेंगे कल, और ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेंगे हमारे दर्शकों के लिए और हमें भी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैम। Thank you. Thank you. My dear friends, we promise to bring back our special celebrity and guest tomorrow. He is a wonderful poet. He has written several poems. कविता लिखे हैं, वो हमारे साथ कल शेयर करेंगे। और आप भी जुड़े रहिए और आप भी सुनिए, और सभी का मदद करना है। हर एक इंसान का हक है इस धरती पर जीना, आपका भी है और हमारा भी है। इसी के साथ हम इस शो को समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो, या आप समझते हैं ये वीडियो किसी और अच्छे इंसान के पास पहुंचना है, या ऐसे कोई सीनियर सिटीजन्स है
उनको शेयर कीजिए उनको, ताकि वो अवेयरनेस हो कि हाँ हमारे लिए, हमारे हमारे लिए लोग हैं, ठहरे हैं, अच्छे लोग ठहरे हैं, जैसे डॉक्टर श्याम सिंह है, लॉ है, हेल्पेज इंडिया है, भारत सरकार है। तो उनको अवेयरनेस क्रिएट करना है, हमारा काम है। प्लीज उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे हमारे काम, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। above all, share the video and save everyone. Stay safe and stay blessed. Thank you very much, sir. Thank you. वेलकम, वेलकम।